Hello students, good morning. We are at the chapter number 3, Was It a Dream of revision part. So every student must be sitting with the textbook and their English notebook so that they can write down all the questions and revision along with. Okay, so let's read the first question. First of all, let's take quick revision of it. As usual, we are taking. So chapter name is Was It a Dream? It is chapter number 3. The story is all about brother and sister Rita and Frank. Rita is a sister, Frank is a brother. So they both were there in the story. Frank wanted to do fishing, right? So in this chapter we have even done the fishing road making activity. All the students have sent me nice videos of that. And Frank and Rita, they were brother sister. Rita was feeling bored and she told Frank to come and play with her, but Frank denied. Frank replied that I want to catch some fish, so I won't be able to come and I won't be able to play with you because I want to catch fish and I have to sit here for a long time for that. So Rita was feeling drowsy. Rita को थोड़ी नींद आने लगी. So she lay down nearby the stream. Stream के पास जाके वो सो गई. Stream का मीनिंग होता है झरना, पानी का. So जैसे ही वो lay down हो गई, उनको नींद आने लगी. Rita was feeling drowsy. She was feeling sleepy. नींद आने लगी. Suddenly वो नींद में उनको एक ड्रीम आया. ड्रीम में क्या था? एक स्कूल की बहुत बड़ी फिश देखी. फिर वो एक दूसरे से बातें कर रही थी. फ्रैंक का जो फिशिंग रोड था उसमें एक बाइट हैंग किया था. मतलब फ़िश को अट्रैक्ट करने के लिए जो फूड दिया जाता है, वॉर्म दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाइट. तो वो बाइट को देख के फ़िश एक दूसरे से बात कर रही थी. फिर जो बड़ी वाली फ़िश है वो छोटी वाली फ़िश को समझा रही थी कि ये मत खाना, ये ट्रैप है, ये कोई फूड वगैरह नहीं है, ये जैसे ही खाने जाओगे देयर इज़ हुक इनसाइड एंड इट विल कैच यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू कम अगेन हियर. तो ये एक क्या है? जाल है, ट्रैप है. तो रीटा को ये ड्रीम आ रहा था ऐसा, राइट? तो फ्रैंक अचानक से आवाज़ आई फ्रैंक की. क्या बोला फ्रैंक ने? वो गिर गया ज़मीन के ऊपर. पहले बोला कि वाह, आई गॉट अ स्प्लेंडिड कैच, मुझे बहुत अच्छा कैच, मैंने एक बहुत बड़ी वाली फ़िश पकड़ी है. फिर वो ज़मीन पे गिर गया. तो रीटा वॉज क्वाइट वरिंग अबाउट कि लगी तो नहीं. फ्रैंक को नहीं लगी थी. ओके, उनको कोई कुछ हर्ट नहीं हुआ था. देन शी स्टार्टेड लाफिंग. वाई शी वॉज लाफिंग? शी वॉज नॉट लाफिंग बिकॉज फ्रैंक फॉलन डाउन. शी वॉज लाफिंग बिकॉज द फिश हैड एस्केप्ड. फिश वापस पानी में चली गई. फ्रैंक के हाथ से पानी में जो फिशिंग रोड था वो छटक गया. वो वहाँ से फिश ने क्या किया? अगेन शी बैक टू दी वाटर. पानी में वापस वो अंदर चली गई. पकड़ा गई थी वो, बट वापस वो पानी में चली गई, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी. एट द एंड रीटा वॉज क्वाइट हैप्पी बिकॉज फिश क्या हुआ? वो पुअर फिश थी, लाइक शी वॉज पुअर फिश. तो वो पकड़ी ना गई. शी वॉज एस्केप फ्रॉम द फ्रैंक्स फिशिंग रोड. दैट्स वाई रीटा वॉज क्वाइट प्लीज्ड एट द एंड. ओके, सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड आंसर. Question number 1. Who was Frank? Who was Frank? Brother. Whose brother? Frank was Rita's brother. Okay. If this question will be revised, अगर ये दूसरी तरह से पूछते हैं question, who was Rita? Answer will be Rita was Frank's sister. Question number 3. From where Rita was gathering flowers? Rita कहाँ से flowers gather कर रही थी? See, if you have open your textbook, then you can search it from that also. It is not like you have to read the answers which I have given. You can search from it. So in first line it is given, Rita gathers flowers in the woods while her brother Frank sat by the stream with his fishing rod. So we can learn from here that Rita was gathering flowers in the woods. Woods का meaning होता है smaller area like a jungle or forest. Jungle or forest particular नहीं, but smaller area just like that. So answer will be Rita was gathering flowers in the woods. Question number 4. What Frank wanted to do? Frank को क्या करना था? Why he was sitting
nearby the stream. What he wanted to do, you can see even in the picture, you can observe from the picture itself. Picture में देख के story हमें पता चल जाएगी. So I can see Frank is trying to catch some fish. He is sitting at nearby the stream with his fishing rod. So obviously क्या करेगा वो? He will catch some fish. So answer will be Frank wanted to catch some fish. Frank wanted to catch some fish. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज रीटा फीलिंग? रीटा क्या फील कर रही थी? वॉट शी वॉज फीलिंग? नींद आ रही थी रीटा को? येस. सो वॉट विल बी आंसर? रीटा वॉज फीलिंग ड्रॉजी. ड्रॉजी का मतलब होता है स्लीपी. स्लीपी मतलब ड्रॉजी, थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है, उनको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉजी. नाउ वेन एवर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, don't use that word sleepy. You have to use word drowsy. We will use new words to improve our English language. Question number 7 is what Rita could see. Rita जब lay down हो गई थी, सो गई थी stream के पास, at that time what she can see over there? Rita could see the bottom of the stream and school of fish swimming about quickly. What she can see? She can see बॉटम ऑफ द स्ट्रीम. स्ट्रीम का बॉटम जो है वो उनको दिख रहा था. एंड इवन शी वॉज एबल टू सी स्कूल ऑफ फिश. व्हाट दे वर डूइंग देयर? दे वर स्विमिंग अबाउट क्विकली. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट स्मॉल ग्रुप ऑफ फिश वॉज डूइंग? जब रीटा ने देखा कि स्कूल है फिश की, फिर वो एक दूसरे से कुछ बातें कर रही थी, ऐसा चैप्टर में हमने रीड किया था. सो हियर दे आर आस्किंग व्हाट स्मॉल ग्रुप ऑफ फिश वॉज डूइंग. क्या कर रहा था फिश का जो ग्रुप है वो? स्मॉल ग्रुप ऑफ फिश स्पीकिंग वेरी ईगरली टू वन अनदर. क्या कर रहा था वो? दे वर स्पीकिंग टू वन अनदर वेरी ईगरली. एक दूसरे से कुछ वो बातें कर रहा था. क्या कर रहा था? दे वर आई थिंक डिस्कसिंग अबाउट दैट बाइट दैट हैंगिंग ऑन द फिशिंग रोड. क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विफ्टली? स्विफ्टली का मीनिंग क्या होता है? स्विफ्टली का मतलब होता है एकदम स्पीड में. So we will write down the meaning of swiftly is moving very quickly. Swiftly का होता है meaning moving very quickly. Question number 10 is what was hanging on the fishing line? Frank जो fishing rod लेके बैठा था, वो fishing line में क्या hang किया है, वो क्या लटकाया है वहाँ पे? Bite was hanging on the fishing line. जो worm है खाने के लिए, जो fish को attract करने के लिए जो कुछ उस पर हैंग किया है, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइट. सो आंसर विल बी बाइट वॉज हैंगिंग ऑन द फिशिंग लाइन. क्वेश्चन नंबर 11 इज वाई फ्रैंक वॉज नॉट प्लेइंग विथ रीटा? रीटा वेंट टू द फ्रैंक एंड शी वॉज टेलिंग टू हिम दैट फ्रैंक कम एंड प्ले विथ मी, बट फ्रैंक वॉज नॉट प्लेइंग. वाई? बिकॉज उनको क्या करना था? ही वॉन्टेड टू कैच सम फिश. So we will write down answer as Frank was not playing with Rita because he wanted to catch some fish. Frank was not playing with Rita because he wanted to catch some fish. Question number 12 is what the largest fish was trying to? लार्ज बड़ी वाली जो फिश है वो छोटी वाली फिश को क्या सिखाना चाहती थी? What she wanted to teach, what she wanted to tell, कुछ बोलना चाहती थी वो. The largest fish was trying to warn the little fish about the dangers. क्या करना चाहती थी? वहाँ पे जो डेंजर, जो खतरा है उनके बारे में उनको वार्निंग देना चाहती थी कि आप अगर वहाँ पे जाओगे तो पकड़े जाओगे, फिर आप वापस कभी पानी में आ पाओगे नहीं. बिकॉज ये बाइट नहीं है, ये बाइट नहीं है, बट ये क्या है? आपके लिए एक ट्रैप है. इट इज़ काइंड ऑफ ट्रैप फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 13, वॉज इट अ ड्रीम और अ रियलिटी? वट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि स्कूल थी फिश की, फिर फिश एक दूसरे से बात कर रही थी? वट वॉज दैट, रियलिटी और अ ड्रीम? ओके, सो आंसर विल बी आई थिंक इट वॉज अ ड्रीम. मुझे क्या लगता है? ड्रीम. ये ड्रीम ही था बिकॉज फिश नेवर टॉक टू ईच अदर. अगर वो बात भी करते हैं तो ह्यूमन बींग को ऐसे पता नहीं चलता वो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. और कभी पानी का आप स्ट्रीम देखोगे, झरना देखोगे, तो आपको उसका बॉटम ऐसे इतना क्लीन दिखाई नहीं देगा कि जैसे आपको फिश वगैरह दिखाई दे वहाँ से. सो आई थिंक इट वॉज अ ड्रीम. क्वेश्चन नंबर 14 इज वॉट इज देयर इनसाइड द वॉर्म? वॉर्म के अंदर क्या होता है? फिशिंग रोड में, फिशिंग लाइन में वॉर्म है, राइट, हैंग किया हुआ. फिर वॉर्म के अंदर क्या है? ट्रैप है. देयर इज अ हुक इनसाइड द वॉर्म. व्हाट इज देयर? देयर इज
हुक इनसाइड द वर्म, हुक है, हुक क्या करेगी, जैसे ही फिश बाइट खाने के लिए आएगी वैसे हुक है वो उसको पकड़ लेगी, मतलब फिश विल गेट ट्रैप इनटू दैट। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, वाई वॉज रीटा प्लीज्ड एट द एंड, रीटा लास्ट में खुश क्यों हो गई थी, वाई शी वॉज हैप्पी, फ्रैंक गिर गया था नीचे इसके लिए, नो नॉट फॉर दैट रीजन, आंसर विल बी रीटा वॉज प्लीज्ड एट द एंड बिकॉज द लिटल फिश हैज़ एस्केप्ड, ये जो पुअर फिश थी, लिटल फिश थी, वो छटक गई थी वो जो फिशिंग रोड है उसमें से, दैट्स वाई रीटा वॉज क्वाइट हैप्पी फॉर हर। Okay students, so we have done with chapter number 3 revision here.